Okay. Hi everyone. Just let me know I'm audible and screen is visible to all. Okay, that's fine. Kindly wait for 1 minute hardly, and then we'll start. So today we are going to discuss about the dark wave and the Tor browser. Two things we are going to discuss. So before further proceeding, just let me know how many of you are new to the dark wave or they are not aware about like what is dark wave and how we can explore dark wave actually and the Tor browser. Let me know in the chat box. Okay, only one or two students. So you guys are comfortable like in English or Hindi or mixed? Those who need specifically in English because other people का उनका पता है मुझे वो लोग का हिंदी and English mix. English is good. Okay. Okay. Let's just proceed in I guess 80% of English and rest of 20% in Hindi because हिंदी वालों को इंग्लिश समझ में आ जाएगा बट इंग्लिश पीपल्स कांट अंडरस्टैंड हिंदी उनको थोड़ा दिक्कत होता है कई बार. Okay, so those who are unaware about the dark web and how we can explore the dark web and the other things happening in a dark web, so you guys can refer some of my videos already uploaded in YouTube. So you guys can refer Black Hat Part 1, Part 2 or like any other workshops के जो videos YouTube पे होंगे, you guys can watch from there because we have to proceed in an investigation site. So that's why briefly I'll let you know what is dark web and what are the things going on inside dark web. Thereafter, like we'll further proceed about the Tor browser, and in detail we have to study about the Tor browser and if somebody is like using the Tor, then how we can trace out and in investigations what are the methodology involving inside that. Okay. So let me just write the objective as I'm like writing in any particular session so that timelines हमारे clear होंगे in which particular timelines or like what portion will cover how many times, okay, or how much time. So the first thing we're going to discuss about that is a dark web so that those who are totally new they'll get to know like उनको थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाएगा एंड आफ्टर दिस मीटिंग अब लास्ट में मैं आपको बता दूंगा कौन से वीडियोस वगैरह देखने हैं सो यू गाइस विल एक्सप्लोर बेटर तो आपको उसमें ज़्यादा बेटर समझ में आ जाएगा सेपरेटली लाइक इसमें और ज़्यादा इन डिटेल सेशंस मुझे लेने होंगे अगर जितने अभी यूट्यूब पे अपलोडेड है देन आई विल ट्राई टू टेक एनी अदर पब्लिक सेशन ओके सो वी विल डिस्कस 5 to 7 minutes for this and thereafter we'll go to the studying of like how to identify and okay before that we'll study about the Tor browser, right? So we'll discuss about this around 5 minutes and thereafter we'll discuss about uh, how to identify ignore the spelling, right? The traces of Tor during investigation.
and then this will take, I guess, 10 minutes. Then the next part will cover up, that is the Tor browser forensics. This will take 20 minutes. Or like we can say 20 to 30 minutes. And lastly, we'll discuss about an overview of collecting and analyzing memory dumps. And this will take, I guess, 5 to 10 minutes. Okay, so 30 and rest of the 30. So around in 1 hour of time period, we'll try to cover up these sessions. Okay, we're going to discuss dark web and investigations. Probably this series will come back with a part 2. Part 2 के साथ भी आ सकती हैं, because we will not cover up the whole scenario in investigating the dark web, because so many things are there and so many leaks are there, and like in case of any activities or like we are doing any kinds of transactions, so there is a different or like another important segment that is involving in the dark web investigation, that is tracing of like crypto or like cryptocurrency or like about the blockchain. Okay, so maybe if possible then I will try to take the public session, otherwise ये सेशन सारे पब्लिक नहीं होते हैं, but we'll see. So part 2 is remaining. Let's just focus on the part 1. So dark web के बारे में थोड़ा स्टडी करते हैं in between 5 to 7 minutes. So basically those who are totally new, this particular 5 to 7 minutes is for you actually. Okay, students are still joining. I'm going to erase this, or no, let me just write there. I'm writing here dark web. So writing the dark web, I'm writing internet, and basically those who are normal peoples and totally new to the cyber world, I know like 90 to 95% of the persons are like already aware about the internet, dark web, deep web, and the surface web, but I'll have to explain for 2 to 5 minutes, so that's why I'm explaining this. The first web I am just writing here, that is surface web, right? सरफेस वेब, और इंटरनेट को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है हमने जनरली, अदरवाइज बहुत सारे और भी कैटेगरीज हैं लोगों ने डिवाइड कर रखा है. तो वट एवर द थिंग्स वी आर डूइंग ना, लाइक गूगल क्रोम, यूट्यूब, फेसबुक, जीमेल, social media, and anything we are doing in the internet, that is all are covered under the surface web. So जो आम लोग हैं उनको सिर्फ इतना ही पता होता है कि हम सिर्फ सरफेस वेब में काम करें, उनको ये भी नहीं पता होगा कि अदर देन दिस there are a lots of spaces or like anonymous servers are there, a lots of datas are there, we can access those things. और हम बोल सकते हैं जो साइबर क्रिमिनल्स हैं या फिर ब्लैक हैट हैकर्स हैं, इधर जनरली वर्किंग ऑन अ डार्क वेब, उनका सारा एक्टिविटीज डार्क वेब पे होता है. इन साउथ मूवीज और लाइक हॉलीवुड मूवीज और बॉलीवुड मूवीज में जितने इलीगल काम हमने देख रखे हैं, लाइक किसी को कॉन्ट्रैक्ट किलिंग कराना और लाइक ऑर्गन आपको स्मगलिंग करनी है, और लाइक ह्यूमन ट्रैफिकिंग, गन्स परचेजिंग, एंड लाइक कार्डिंग्स वगैरह भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं, स्टीलिंग द एटीएम कार्ड्स एंड लाइक परचेजिंग सम प्रोडक्ट्स, वो सस्ते दामों में प्रोडक्ट्स वगैरह खरीदना, एंड ड्रग्स वगैरह का स्मगलिंग, एंड फेक डॉक्यूमेंट बनाना, किसी भी यूनिवर्सिटीज़ को हैक कराना, आपको किसी हैकर्स को हायर करके कुछ और काम कराने हैं. तो इतने सारे जो चीज़ें हैं ना, वो हमारा डार्क वेब एंड डीप वेब में कंसिडर करा जाता है. आई एम राइटिंग हियर डार्क वेब. सो दैट इज द मेन पोर्शंस वी आर गोइंग टू स्टडी, और लाइक उस पर जो भी इन्वेस्टिगेशन अप्लाई होंगे वो हमें आज कवर अप करना है. एंड अनदर वन इज कॉल्ड डीप वेब. डीप वेब इज नथिंग बट सम सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो हमें नॉर्मली सरफेस वेब में नहीं मिलता है. ओके, समथिंग लाइक दैट. अगर मैं फॉर एग्जाम्पल्स कुछ बात करूं एग्जाम्पल के लिए,
Wait a minute, I'm getting some important call. Give me 1 minute. ओके, लेट्स जस्ट फर्दर प्रोसीड. ओके, सो आई एम डिस्कसिंग अबाउट द डीप वेब. सो अब डीप वेब में क्या होता है? सरफेस वेब इज डिफरेंट कैटेगरी ना. आम इंसान को सिर्फ सरफेस वेब के बारे में पता होता है. डार्क वेब को मैंने कैटेगराइज कर दिया, दैट इज टोटली डिफरेंट. ऑल द इलीगल थिंग्स मैंने जितना कुछ बताया, आप इस टाइम पे गन्स वगैरह नहीं खरीद सकते, ड्रग्स वगैरह पे काम नहीं कर सकते. सो द सॉल्यूशन इज कि हमें ये सारी फैसिलिटीज, या फिर तो मैं बात करूं नेक्स्ट लेवल पे, अगर मुझे एंड्रॉइड हैक करना है और लाइक पेलोड, एक्सप्लॉइट, सो मेनी टूल्स आर देयर. बाय यूजिंग दोज टूल्स वी कैन डू एनीथिंग. सो ब्लैक हेड्स के सारे बुक्स वगैरह, एवरीथिंग इज अवेलेबल इन डार्क वेब. सो अब उससे ही पता चलता है कि इंटरनेट को अगर हम पूरा 100% में कवर अप करें तो ये सिर्फ 4% में कवर अप होता है, और बाकी के 96% टू 95% में डीप वेब एंड डार्क वेब कंक्लूड होता है. तो दोनों को समराइज करके मैं इधर लिख रहा हूँ, दैट इज 96%. 96%. So we are discussing about the deep web. अब deep web में क्या होते हैं? So I have just given an example, like कि अगर मुझे कोई सिक्योरिटी एजेंसीज के बारे में पता करनी हो, या फिर तो जिनके वर्किंग सीक्रेटली चलते हो, लाइक मुझे रो के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, और या फिर मुझे CIA के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, राइट. सो उनके इंफॉर्मेशन इफ विल सर्च ऑन गूगल क्रोम, देन वी कांट गेट दोज इंफॉर्मेशन, राइट. तो वो हमें वहाँ पे इंफॉर्मेशन वगैरह ज्यादा जनरली मिलेगा नहीं. लेकिन हम डीप वेब में सर्च करते हैं. डीप वेब एंड डार्क वेब नथिंग बट सम काइंड ऑफ लिंक्स हमारे पास में होते हैं, और उस लिंक्स को हम नॉर्मली सरफेस वेब पे अप्लाई नहीं कर सकते. उसमें ओपन करेंगे क्रोम से, वो खुलेगा ही नहीं. कुछ ऐसे सर्वर्स होते हैं जिस सर्वर्स के डाटा को एक्सेस करने के लिए एक पर्टिकुलर रूल्स होती हैं, एक पर्टिकुलर ब्राउजर्स के थ्रू हमें जाना होता है, और तब हम सिर्फ एक्सेस कर पाते हैं. दैट इज द डिफरेंशिएशंस बिटवीन लाइक सरफेस वेब, डीप वेब एंड डार्क वेब. आई गेस एम आई क्लियर टू ऑल कि ये तीनों चारों चीजें क्या होती हैं? अगर अभी किसी को नहीं समझ में आए, दोज वर टोटली बिगनर्स, तो आप पिंग करो चैट बॉक्स में. मैं 1-2 मिनट और किसी चीज पे एक्सप्लेन कर दूंगा, अदरवाइज विल फर्दर मूव. डार्क वेब के लिए मैंने पहले बताया, रिफर वीडियो किसी भी एक यूट्यूब पे मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करा होगा. वी हैव प्रैक्टिकली एक्सप्लोर किया, उसको कैसे एक्सप्लोर करेंगे. वैसे एनोनिमस सर्वर्स को प्रैक्टिकली दिखा भी रखा है मैंने उसमें, कि कैसे आपको इन करना है, हाउ वी कैन ऑपरेट द टोर ब्राउजर. सो फॉर यूजिंग डार्क वेब के जितने भी लिंक्स है ना, उनको एक्सेस करने के लिए वी नीड काइंड ऑफ ब्राउजर, जो कि हमने टोर ब्राउजर दिया. ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी ब्राउजर से कर सकते हैं. राइट नाउ आई मीन अ डार्क वेब. मैंने टोर ब्राउजर ओपन कर रखा है इसमें. लेट मी जस्ट गो टू द Google Chrome, and we can go to no any search engine, or like we can search like Tor browser download. So this is a open source tool, so anyone can download this and anyone can use this, but this is something dangerous, this is something illegal. So इसको use करने से पहले थोड़ा सा समझ के. For all the platform we are getting, like for Windows, for Mac OS, for Linux, for Android. So for Windows I have already downloaded, and this is the interface after installation. If you guys will open, so this thing will open. Okay, यहाँ पे मैंने एक सर्च इंजन ओपन कर रखा है, तो लाइक द गूगल क्रोम और लाइक Yahoo or like Bing. Okay, so similar to that we have different kind of search engine for a dark web too. Dark web को भी सर्च करने के लिए हमारे पास कई सारे सर्च इंजन है. अहमिया अभी ओपन है, टॉर्च इज देयर, ग्राम इज देयर, डगडगो इज देयर. ओके, ऐसे सारे कुछ ओपन होते हैं. नाउ द क्वेश्चन इज हाउ वी विल आइडेंटिफाई वेदर वी आर इन अ डार्क वेब और नॉट. सो उसके लिए आप URL को फोकस करेंगे. सो नॉर्मली आपके जो गूगल क्रोम में जो आप सर्चिंग करते हैं, या वट एवर द वेबसाइट्स यू गाइस आर विजिटिंग, उसके एंडिंग .com .in ऐसे कुछ URL से होती है, राइट. बट जनरली हमारा डार्क वेब के जो लिंक्स होते हैं वो .onion से एंड होंगे. तो अगर .onion से एंड हो रहे हैं, दैट मीन्स वी आर इन अ डार्क वेब सर्वर. हम डार्क वेब के सर्वर्स पे हैं. अब यहाँ पे मैं कुछ भी सर्च करूंगा, यहाँ से कुछ चीजें आएंगी. सो दोज फिल्ट्रेशन हमारे पास जो निकल्स के आएंगे, वो डार्क वेब के सर्वर के डाटा से आएंगे. वो सर्वर्स कहाँ पे हैं किसी को भी नहीं पता. इसीलिए यहाँ पे जितने इलीगल क्राइम्स होते हैं, साइबर सेल और लाइक पुलिस आर नॉट एबल टू ट्रेस लाइक मैक्सिमम ऑफ द साइबर फ्रॉड्स और लाइक साइबर क्राइम्स जो डार्क वेब रिलेटेड बेस्ड होते हैं. और ये अभी बहुत लाइक टॉप पे चल रहा है ये पॉइंट. हर इन्वेस्टिगेटर और लाइक इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट और लाइक ऑर्गेनाइजेशंस के पास में सबसे बड़ी चैलेंजेस ये है कि हाउ वी कैन प्रोसीड इनटू द इन्वेस्टिगेशंस, और इसमें क्या क्या स्टेप्स या क्या न्यू टेक्नोलॉजीज वी कैन इम्प्लीमेंट सो दैट वी कैन ट्रेस आउट एवरी क्राइम्स एंड ऑल. ओके, तो अभी यहाँ पे क्या, यहाँ पे हम जो भी कुछ सर्च करेंगे, इफ आई कॉपी दिस लिंक ना एंड आई पेस्ट ऑन क्रोम, तो ये नॉर्मली ओपन नहीं होगा. लेट मी जस्ट पुट दैट.
So see, we are not able to open normally a dark web links into the Chrome, right? So that's it about the introduction portion. I guess am I clear to all? Let me know if you guys have any kinds of query. यहाँ तक किसी को जो लोग totally new थे? Yes, those are actually available in an anonymous server. So we can see. That's why I have combinedly says like rest of the 96% part is deep web and dark web. डार्क वेब के लिंक कहाँ मिलेंगे? बहुत सारे लोग बिगनर्स हैं क्या? बाकी अभी जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं दे विल गेट बोर, उनको ऐसा लगेगा ये बेसिक बेसिक चीजें चल रही हैं। और किसको समझ में नहीं आया? Dark web के links, Rusikesh, for that you guys can search their hidden Wikipedia or like whatever the links you are searching. So simply you can just write here hidden Wikipedia, hidden wiki, or I have shared some dark web links and dark web forums in a Telegram group too. Hidden wiki you guys will search now. So click on search. We can use this browser for a normal purpose too. Like if you guys are searching for the Amazon or like any other websites, you guys can search. And later on, like we will discuss about the Tor browser, why this is slow and multi-layer of encryptions and all. So let's just wait for some time. काफी slow open हो रही है इसमें. Okay. So we can open any of these links and check. And in the upper search bar, now we guys can see whether we are in a normal web or whether we are in a dark web. So if that is ending with .onion, that means थोड़ा ध्यान से चलना. हाँ यस, हिडन विकी में मिल जाएगा. Dark web is harmful for normal surfing. See, those who are totally beginners, I am again repeating. आप जो है आपको मैं refer कर दूंगा इस सेशन के एंड में वो वीडियोस वगैरह, या आप वहाँ पे जाके चेक कर लेना, उसमें आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा. मैंने और आगे में 1 मिनट ना मैं दिखाई देता हूँ आपको जो लोग टोटली बिगिनर्स, अदरवाइज मुझे बेसिक एक्सप्लेन करने में आज टाइम चला जाएगा. Go to the videos section. Okay, sorry, channel section. Or videos, or check any of this black hat part. I guess refer the black hat part 1 and don't go with the part 3. Okay. Where are the videos? Okay, you can refer this. Those who wants English, so you guys can refer this day 2, right? 1 year ago, I have uploaded dark web and carding practicals and all. So day 2, you guys can check out or just search for the black hat one. This one is black hat part 2, right? So this is black hat part 2 and part 1 is also there. This one is black hat part 1. So you guys can refer these. I'm sharing one of these links. You guys can check out all. Those who are totally beginners and not able to understand. Okay, that's it. So should we proceed with the further topic? If there is any more query? Okay, let's just come back to the another topic. So I guess we have done what is surface web, what is deep web, and what is dark web, right? And what kind of illegal things are happening inside the dark web. Now, how we can operate those links, or how we can do anything, and we can access the servers, we can get the data from the dark web servers or deep web servers. So for that, we have a special browser that is Tor, right? The Onion router. और लाइक द ऑनियन, अगर मैं हिंदी में बताऊं तो हमने ऑनियन देख रखा होगा.
दैट इज अ मल्टीपल लेयर्स, और अगर उसके सेंटर्स पे अगर हमें पहुंचना है तो वी हैव टू ब्रेक लाइक सेवरल लेयर्स ना, 5 to 6 लेयर्स को हमें ब्रेक करके वहां तक पहुंचना पड़ेगा। उसी के बेसिस पे इसका नाम पड़ा है टोर ब्राउजर, द ओनियन रोटर। ओके, so for Tor browser, I have already instructed, go to the search engine, or like you guys can search, like download Tor for Windows, Mac OS, Linux, and Android. We can easily able to download that. Now coming back to the investigation portion. So for like investigations like trace out and other things, it is very necessary to understand first like what is Tor and how Tor works actually. And if you'll get to know like what are the working structure of Tor, then only we'll get to know like how Tor is different from the VPN, or like what's the difference between like Tor and VPN, or we can say proxies and all, and which is good to use. Okay, I guess am I clear with these points? Let me just open Paint. The name and the different full forms may be different. So for understanding the Tor, we need to understand the Tor relay, or I'm writing as in nodes. Okay. Let's suppose I'm making a particular system. This is the client system from where we have to use Tor browser. Tor is installed. This is the client, and I'm making here, this is a server, right? Now what happens whenever we are using the Tor browser now? So firstly, we are going to connect with the first node, or we can say this is the entry node. Entry node, okay. And thereafter, we are connecting with a middle node, we can say, or middle relay. I'm writing here a relay. Middle relay. CHFI वाले स्टूडेंट्स है ना यहाँ पे, आप तो अच्छे से ही समझते चलना, because those questions can be asked in a CHFI exam. And we have a lastly, let me just make, here is the middle relay, and I'll explain one each of the relay in a detailed way. And lastly, we are having the exit relay. Exit relay I'm writing here. And after then, we are able to connect with the destination. Okay. Now let's just discuss a little bit in a detailed way, like what is entry node or entry relay, and what is middle relay, and what is exit relay. Because in this relay now, we are having multiple nodes to connect. That means we are having multiple servers to connect. That's why we are saying Tor is using the multi-layer encryption. In this relay, we have the
मल्टीपल नोड्स, जिनको समझ में नहीं आ रहा इन लेमन लैंग्वेज, multiple nodes means nothing but a system or a server, we can say. Okay. And whenever we are trying to investigate using the Tor browser, then sometimes we can trace out all the list ऑफ रिले, राइट। हम जितने भी रिले कनेक्ट हो रही हैं उन रिलेज को ट्रेस आउट भी कर सकते हैं। सम अदर क्लासेस हम उस पर थोड़ा और बातचीत करेंगे, दैट्स आई हैव सेड लाइक कि पार्ट 2 भी हो सकता है कि इसकी आएंगी, एंड उसमें थोड़ा ज़्यादा बेहतर हम डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे। नाउ द पॉइंट इज let's just further discuss about the entry relay and like middle relay and the exit relay. So entry relay will be the first connection point, we can say, right? Client से जब भी हमारा फर्स्टली किसी सर्वर पे कनेक्ट होता है तो that is a entry relay, or this is used for establishing the Tor network. Okay, or the user connects to try the entry node from which the IP addresses of the user can be seen. Okay, so that means यहाँ पे जैसे यहाँ पे जब भी हम कनेक्ट होते हैं ना, either we are using the VPN or like either we are using the Tor browser or either we are using the proxies, उन सारे ही केसेस में और ISPs को हम जो हमारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको ये पता होता है कि हम क्या यूज कर रहे हैं। They are not able to know, they are not aware about what are the websites we are visiting or like वहाँ पे क्या activities कर रहे हैं, but they have the informations like we are using this. वो हमारे लोकल जो हमारा DNS है या फिर आप लोकल नोड बोल लो या लोकल रिले बोल लो जहाँ से आपके सिस्टम्स कनेक्ट होते हैं, उसमें वहाँ से अगर कोई इन्फॉर्मेशन कुछ निकालना चाहें देन ओनली वी हैव द पॉसिबिलिटीज, वी कैन फाइंड आउट द इन्फॉर्मेशन। ओनली वन लूप होल्स, लेटर ऑन अभी इसमें थोड़ा प्रैक्टिकल्स भी देखेंगे हम, ठीक है। तो अभी क्या समझ में आया? फर्स्टली अगर एक क्लाइंट जो है किसी फर्स्ट एंट्री रिले को कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है, सो उस टाइम पे लोकल डीएनएस के थ्रू कुछ इन्फॉर्मेशन निकाली जा सकती हैं फ्रॉम द विक्टिम्स पीसी, और फिर अगर हमें क्राइम सीन पे कोई पीसीस मिलता है तो ओके। देयर आफ्टर इसके बाद जितने भी रिले हमारे पास में कनेक्ट होंगे, लाइक मिडिल रिले जिसको हमने नाम दिया, ओके, यहाँ पे हमारा डाटा इंक्रिप्शन का काम होता है जो मिडिल रिले है, and one relay to another relay, or like one nodes to another nodes, one nodes to another nodes, like we have a multiple encryption, generally 2 to 3 encryptions जो अप्लाई होते हैं नॉर्मली उतने आपके अप्लाई होंगे। देयर आफ्टर इट विल गो टू द एग्जिट रिले, और इन एग्जिट रिले यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा सिक्योरिटी के बेसिस पे अगर कलर्ड वाइज बताने की कोशिश करूं तो इधर सारी चीजें एनक्रिप्टेड होती हैं, इधर तक सारी चीजें एनक्रिप्टेड होती हैं, बट फ्रॉम द एग्जिट रिले टू सर्वर इस पॉइंट पे वी आर हैविंग द डिस्क्लोजर और लाइक डिक्रिप्शंस ऑफ ऑल द डाटास एंड रिक्वेस्ट गोइंग टू द सर्वर। सर्वर के पास में जो डिटेल्स जा रही हैं यहाँ पे डिस्क्लोजर होता है। दैट मीन्स इफ वी वांट और लाइक सर्वर वांट्स टू investigate on that or to analyze the data and to analyze the logs and all, then we can easily get the IP addresses of the exit relay. Exit relay की informations मिल जाती है वो केसेस में। आई गेस कि थोड़े लोगों को कुछ समझ में आ रही होंगी। आप थोड़ा पेशेंस रखो, 10 to 15 मिनट्स मोर, धीरे धीरे अभी समझ में आने लग जाएंगी। सो इन ए समरी लेट मी समराइज दिस पर्टिकुलर टॉपिक, देन विल फर्दर मूव। सो फर्स्टली मैंने क्या बताया कि टोर को समझने के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रिले। ओके, रिले को मैंने क्या बताया, ऑल्सो रिफर टू द राउटर्स और नोड थ्रू विच ट्रैफिक पासेस, दैट इज एक्चुअली रिले, जहां से हमारे ट्रैफिक पासेस होंगे। उसके बाद हमने 3 पॉइंट समझे इसमें। जनरली वी आर यूजिंग द एंट्री, टोर इज यूजिंग द एंट्री रिले, that is the first point where network is connection is established। तो वहां पे एक चांसेस थोड़ा होता है कि लोकल डीएनएस के थ्रू हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए, एंड देयर आफ्टर डाटा एनक्रिप्शन प्रोसेस इज गोइंग ऑन इन अ मिडिल रिले। मिडिल रिले जो हमारा एक काइंड ऑफ आप कुछ पोर्शंस ले लो जहां पे मल्टीपल सर्वर्स के साथ में हमारे डाटा में एनक्रिप्शन सप्लाई होता है। ये भी क्वेश्चन पूछे आते हैं कई बार अगर टोल्स में टोर बेस्ड डिटेल्स क्वेश्चन पूछे गए तो। एंड आफ्टर मल्टीपल एनक्रिप्शन इट विल गो टू द एग्जिट रिले, एंड इन एग्जिट रिले there will be a decryptions of all the details and all. So yeah, exit relay to server, वहां पे जो प्रोसेस फॉलो होगा और वहां पे जो रिक्वेस्ट जारी होंगी, so at that time we can trace out any informations, उस जगह पे कुछ informations निकाली जा सकती हैं। This is all about the Tor browsers relay and all, how Tor is actually connecting to the server. Now for like इसके preventions के लिए sometimes some people are using the bridge विद अ टोर के साथ में कुछ ब्रिज यूज करते हैं, और लाइक दे आर यूजिंग सम प्रॉक्सीज ताकि थोड़े और इन्फॉर्मेशन हमारे बच जाए। लेट्स जस्ट फर्दर प्रोसीड। मैं इसको सारे को इरेज कर रहा हूँ।
सरफेस वेब, डीप वेब, दिस इज क्लियर। एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताते चलना, यहां तक समझ में आया? इन रिलेज को समझने में किसी का कुछ दिक्कत? नो ना? Clear to all what is entry relay, exit relay, and all. Now we have to further proceed with how we can identify traces of Tor browser during the investigation. So if we are using in Windows and Linux or like in any platform, so depending on the servers, we are having different options and details accordingly. लाइक जैसे कि अभी जो कुछ बच्चे जो पढ़ रहे होंगे CHFI में, उनको बताया था मैंने, लॉग फाइल से कौन से सर्वर से कितनी डिटेल्स मिलेंगी वो डिपेंड करता है कि हम क्यों कौन से सर्वर में इन्वेस्टिगेशंस अप्लाई कर रहे हैं। ओके, मीन्स एवरी सिंगल थिंग इज पेन एनक्रिप्टेड फ्रॉम द एग्जिट नोड अनएनक्रिप्टेड, यस। सो दैट इज अ काइंड ऑफ लूप होल्स। अगर कुछ जगहों पे क्वेश्चंस आते हैं टोर बेस्ड में, सो उस पर आता है कभी, अभी आप उसमें कुछ क्वेश्चन वगैरह देखेंगे तो फ्रॉम एग्जिट रिले टू सर्वर्स, उसके बीच में हमारा ओपन होता है उसका थोड़ा इंक्रिप्शंस, तो दैट इज डिफिकल्ट। कैन वी ट्रेस एग्जिट रिले? यस, एंड समटाइम्स investigator are proceeding from either like from the local DNS or like from the first relay or in the last relay or like exit relay, middle में वो कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है? ओके हाँ, जिनको करना होगा मुझे लास्ट में एक बार पूछ लेना। नाउ लेट्स जस्ट प्रोसीड फर्दर लाइक अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ टू आइडेंटिफाई द ट्रेसेस ऑफ टोर ब्राउजर ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन। सो वी हैव अ सेवरल सिनेरियो। सी, अब वो सिनेरियो क्या हो सकते हैं? either let's see my laptop is the victim's PC or like I have to investigate on my PC and I have installed the Tor browser and I have worked or I have explored any websites or I have downloaded some of the files in a Tor browser and I have uninstalled. So let's just further discuss about the one cases whenever we are having Tor is installed. So let's suppose कि आप में से किसी ने Tor install किया और यूज किया और at the time of investigations मुझे Tor installed ही मिल रहा है उस टाइम पे. So in that scenario, what are the informations we can get? So we will further proceed with that option. And later on, if some person is have used the Tor browser and just uninstalled the Tor, उसने Tor को uninstall कर दिया. So Tor uninstall करने के बाद जो है how we can investigate on that. तो two scenario we have, तो दोनों में डिस्कस करते हैं एक बार। पहले हमें डिस्कस करना है ओपन वाले सिनेरियो में। सो ओपन सिनेरियो को डिस्कस करने के लिए वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द टोर ब्राउजर एंड टोर पे ट्रैकिंग करना काफी डिफिकल्ट है। मैं बार बार इसको बोल रहा हूँ, अभी थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन, इसमें कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिलना बहुत डिफिकल्ट है। ओके, everybody is like here are I guess aware about the port number and all. So firstly we need to know like in which particular port number Tor is generally working. Okay, so I'm writing here. Anybody who are having idea? So remember this port number because generally Tor is establishing the connection in this particular port number. Like the similar protocols we already know, like for HTTP, HTTPS, SMTP, default port number is there. Similarly for Tor browser, we are having a special port number that is a 9150 and 9151. Okay, so if for window now, let me just open Tor. So this is already in a running state. If that is installed, so firstly let me just go to the command prompt and let's just check first whether we have used or we have established the connection in that port number or not. So that we'll get to know whether that PC or that devices have ever used the Tor or not. So Tor उसमें use हुआ है कि नहीं हुआ है हमें पता चल जाएगा with the process ID 2, right? So I'm going to check the network status I have used. So I'm going to type here net state and then a parameter called ANO, right? And what this parameter is actually doing, so this parameter is actually listening all the ports or with the process ID currently active or like established. So if I'll hit enter,
So these are all the port and IP addresses and the process ID, this kind of thing. And what we have to search, this is the first step. Okay, so we are further proceeding step by step, like if somebody is using the Tor browser, then what are the details we can get and how we can further investigate. Some tools are there too. So we are reaching this particular topic will take 30 minutes. Let me just search. So here we can see, I guess you guys are able to see these things. The port number 9150, as I have discussed, right? And let me just go down and let's just check further. So when the right hand side we are seeing, these are the process ID. So those who are having idea about the Windows server slog analysis or like Windows forensics, तो उनको थोड़ा पता चलेगा. और कहीं पे दिख रहा है क्या कुछ? ठीक है, देखना आप अच्छे से दिखेगा आपको. 9150 or 9151. Okay, so 3 to 4 connections we are like seeing there, and one is called time wait, established and time wait. So if other connection established nahi hue the, but we have applied a request to access the dark web. Give me 1 minute guys. The screen is visible, na? Okay, so by just typing this command, हमें इतना तो इन्फॉर्मेशन पता चल गया, लाइक के सिस्टम से टोर ब्राउजर्स इस पोर्ट पे एक्टिव आइदर एस्टेब्लिश्ड हुए थे और लाइक कुछ रिक्वेस्ट वगैरह भेजे गए थे. कुछ और भी आपको पोर्ट्स वगैरह मिल सकते हैं, बट जनरली वो 2 पोर्ट्स आपको आइडेंटिफाई करने हैं. एंड फर्दर लाइक in any log files or like other particular if you'll use the any tools kind of thing, so we'll have to search those port number 2. So just remember those port. Am I clear with this point? We can proceed. Now the other thing is that if we have installed the Tor browser, that means some other traces are there too, right? What other traces, sir? You have to find out where which particular location that Tor is installed. So let me just search. We are discussing these all things in that particular scenario when the Tor is installed and used. If uninstalled, so lastly we'll discuss on that. So open file location. So we can see this Tor is installed on like D drive or Tor browser or like, okay, one point I have missed now, that is very important. What is that? Basically Tor browser is based on Mozilla Firefox. Okay, so हमने उसको थोड़ा मॉडिफाई करा और फिर थोड़े चेंजेस करके फिर हमने Tor browser उसको बना दिया. So sometimes while examining the Tor browser or like while investigations, if you guys are searching on Windows or like any servers, so in Windows registry generally we will see the activities related to the Mozilla Firefox. अभी मैंने Mozilla Firefox यूज भी नहीं किया है, बट अभी मैं आपको वहां पे दिखाऊंगा. So that will show as in कि Mozilla Firefox browser यूज हुए हैं. So that is also a sign कि हमारे जो है Tor browser इस्तेमाल हुए. So इसको भी दिमाग में रखना कि ये Mozilla Firefox और Firefox के रिलेटेड नेम से हो सकता है कुछ भी एक्टिविटीज या कोई लिंक्स वगैरह. ओके, and where we can get that? So for that you can go to the run, or we have to open the Windows registry. I'm going to open Windows run command, and you just have to type there reg or edit, registry edit. Okay, click on OK. Then we are having this information. This one विंडोज फोरेंसिक्स ने इसको थोड़ा डिटेल में करेंगे. हाँ, जो लोग CHFI वाले ज्वाइन किए हैं उनको, तो अभी विंडोज फोरेंसिक्स हमने देखा नहीं था. नाउ दीज आर द
we can say the H key users we have. These options are there. H key classes root and H key current user, H key local machines, H key users and H key current config. जिनको थोड़ा आइडिया होगा फोरेंसिक्स वगैरह का, विंडोज फोरेंसिक्स, उनको पता है कि इनके अंदर में कौन कौन से डिटेल्स वगैरह मिलती है जनरली. नाउ फॉर Tor ब्राउजर वी हैव टू सर्च फॉर दिस H key यूजर. लेट्स जस्ट एक्सप्लेन दिस. इसको एक्सप्लेन करने के बाद क्या करना है हमें? जस्ट हैव टू फाइंड आउट. Let me just, okay, this one. Okay, so if you are seeing any latest timestamp kind of thing, like right now, इसके पहले मेरे पास में लास्ट वाला नहीं था, so for this time if I'll have to analyze, then I'll open this. Otherwise generally आपको either you will have to search for the software, and inside the software we just have to either search for the Tor or the Mozilla Firefox. थोड़े थोड़े different हो सकते हैं. I'm going to expand this. एक्सपेंड किया, इस पे ऐसा कुछ भी मुझे ज़्यादा नहीं मिल रहा है. सो आई एम गोइंग टू लाइक मिनिमाइज दिस एंड लेट्स जस्ट सर्च ऑन देयर. यहाँ पे थोड़ा सर्च करते हैं. सो यहाँ पे हमें सॉफ्टवेयर्स मिला एक, राइट. सो ऑल दिस थिंग्स आर कंसोल आर देयर, कंट्रोल पैनल इज देयर. सो वी हैव सर्च दिस सॉफ्टवेयर एंड इनसाइड द सॉफ्टवेयर दिस वन इज सॉफ्टवेयर, राइट. ये हमारा कहाँ गया? दिस वन इज सॉफ्टवेयर. यहाँ पे देख रहा हूँ प्रिंटर, नेटवर्क, प्रिंटर एंड सॉफ्टवेयर. लेट्स जस्ट एक्सप्लेन द सॉफ्टवेयर एंड इनसाइड द सॉफ्टवेयर we are getting these informations, this. So what we have to find? We have to find out either Mozilla and then Firefox. So let's just further explore this. Otherwise, if you are getting directly Tor, then we can expand that. So let's just expand Mozilla, and inside the Mozilla, we can deep down into the Firefox. And inside the Firefox, we can search the launcher. So in launcher, if we are seeing anything, like I'm not seeing any like file activities or like any kind of links related to the Firefox or like Tor browser. So let's just minimize these all. मैं सारा मेथड बता रहा हूँ. हो सकता है कि आपके लैपटॉप में यहाँ पे दिखे, इसलिए मैंने वो बताया. अदरवाइज मेरे सिनारियो पे आपको डायरेक्टली Tor प्रोजेक्ट और यहाँ पे दिख रहा है आपको, ठीक है. दिस वन इज इनसाइड द सॉफ्टवेयर डायरेक्टरी, राइट. Let me just minimize this one inside the software. So all software installed, those are mentioned here. So I'm going to expand Tor project, and inside the Tor we have Firefox, and inside the Firefox we have to open launcher. So हो सकता है आपके सिस्टम में भी यही काम करे, कुछ लोगों के सिस्टम में डायरेक्टली हो सकता है Firefox वगैरह पे दिखे. So once I'll click on launcher पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखो Tor browser करके एक दिख रहा है. That is a D Tor browser firefox.exe. इस पे मैंने क्लिक किया, ऐसा कुछ तो दिख रहा होगा यहाँ से Firefox. एंड यहाँ पे भी आप अगर थोड़ा सा क्लिक करके रखेंगे तो यहाँ पे भी आपको दिखेगा. एंड सब अदर, इसमें अगर क्लिक किया तो ये भी आपका फायरफॉक्स है. अगर इस पे आपको पता नहीं, थोड़ा थोड़ा कम दिख रहा होगा, आप इसको जूम करके देखना अगर ये वीडियो सब पब्लिक हुए तो यहाँ पे firefox.exe ब्राउजर करके सब जितने भी डी ड्राइव करके आ रहे हैं यहाँ पे सारे ही ड्राइव्स में हमें ये दिख रहा है कि firefox.exe यूज हुए हैं. सो दैट इज ऑल्सो ए साइन के सिस्टम में हमारा ये यूज हुआ है. इफ दैट नेट स्टेट अगर हमारा स्टेटस नहीं दे पाया कि Tor ब्राउजर वगैरह यूज हुआ है कि नहीं, सो वी कैन गेट ऑल दिस इन्फॉर्मेशन, राइट. अब ये सारे इन्फॉर्मेशन की इन डिटेल इन्फॉर्मेशन पे मिल जाएंगी, बट फॉर दैट वी नीड टू यूज सम टूल्स, जिस टूल के हेल्प से आपको बाकी सारे इन्फॉर्मेशन मिलते हैं, लाइक व्हाट काइंड ऑफ फाइल वी आर ट्राइंग टू एक्सेस, और उसके टाइम स्टैम्प वगैरह क्या थे, लास्ट कब इसमें Tor ब्राउजर एक्सेस किया गया था, इन ऑल. सो फॉर दैट मैं एक बार पूछ लेता हूँ अगर यहाँ तक सबको समझ में आया हो तो. अदरवाइज हम कुछ और Tor के कुछ फाइल को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं जहाँ पे कुछ IP एड्रेसेस और बाकी सारी चीजें दिखती हैं. यहाँ तक क्लियर है सबको या रिपीट करूँ? थोड़ा आराम से जा रहा हूँ क्योंकि ये सब थोड़ा मेसी वाला है, भूल भी सकते हैं आप. यहाँ तक क्लियर है? जो बिगनर्स हैं बच्चे, वो लोग ऑलरेडी या तो छोड़ चुके होंगे, आपको समझ में नहीं आएगा, और अभी अगले 10-15 मिनट तक और चीजें ज्यादा हेक्टिक होते जाएंगी तो आपको और समझ में नहीं आएगा. बट फॉर बिगनर्स के लिए मैंने रिफर कर दिया वो. ओके ओके, सॉरी गाइस, मैं म्यूट में था. ओके, लेट्स जस्ट फर्दर एक्सप्लोर. अब अगर नेक्स्ट एक्सप्लोरेशन हम करते हैं ना, तो व्हाट्स द नेक्स्ट थिंग?
अभी इन्वेस्टिगेटर के पास में एक और ऑप्शंस मिल जाता है। ऑन ए सस्पेक्ट मशीन इन्वेस्टिगेटर कैन एनालाइज द स्टेट फाइल, वो एक फाइल होती है, ठीक है, इनसाइड द टोर डायरेक्टरी, एंड दैट डायरेक्टरीज इज एक्चुअली लोकेटेड जहां पे भी आप इंस्टॉल करके रखते हैं उसके पाथ वगैरह आप अकॉर्डिंगली देख लें, टोर ब्राउजर इनसाइड द टोर एंड टोर ब्राउजर डाटा एंड टोर। सो वंस विल गेट दैट फाइल, उसमें हमें स्टेट फाइल को ओपन करके देखना है, दैट वी कैन ओपन दैट फाइल इन ए नोटपैड एंड वी कैन गेट टू नो लास्ट उसमें कब रन हुआ था एंड सम आईपी एड्रेसेस डिटेल्स टू। लेट्स जस्ट फर्दर एक्सप्लोर, उसमें थोड़ा सा ये करते हैं हम। सो हमने क्या किया, हमें फाइल लोकेशन पे जानी थी। ओपन फाइल लोकेशन, सॉरी सॉरी सॉरी, ओके। सो गो टू टोर ब्राउजर एंड आई गेस, सो दिस इज द डायरेक्टरी, ओके। हमने फाइल लोकेशन डी पे गए एंड वी हैव डीप डाउन इनटू द टोर ब्राउजर एंड देन टोर ब्राउजर एंड देन डाटा एंड देन टोर। आई गेस समझ में आ रहा होगा आपको। दिस इज द लोकेशन, दिस इज द लोकेशन। तो सी ड्राइव डी ड्राइव आपका डिफरेंट हो सकता है, बट फर्दर लोकेशंस बिल्कुल आपके सेम होंगे। Okay. Now uh, we are having these all files are there. Like GeoIP6 is there, and GeoIP is there, loc is there, state is there. Firstly, we have to check the state. जहाँ पे कि आपको कुछ status दिखते हैं. Let's just check what kind of information we are getting. So click on open with Notepad. So by analyzing this, we are only able to get the last generated. So we can see Tor state file last generated on this and this timing. So from that particular file, clearly we can say कि last time इसमें Tor कब use हुआ था with a time stamp and a date too. Okay, this is the information, and some other informations are there too. That is on, I guess, GeoIP. So by analyzing the GeoIP, actually this file will provide you some extra latitude and longitude by default Tor browser is using. So by analyzing that, we can sometime analyze like what will be the exit relay on that particular Tor. If we are not, अगर हम उसको खुद से कॉन्फ़िगर वगैरह नहीं कर रहे हैं, तो बाय डिफॉल्ट जो लोग Tor ब्राउजर यूज करते हैं विदाउट कॉन्फ़िगरिंग द Tor, तो उनके केस में ऐसा कुछ हो सकता है। क्लिक ऑन नोटपैड। So here are some websites, or like for more information for the data, see this location. You guys can visit this website, or here we can see also this database has been obtained from this, और यहाँ पे full detail license on this kind of thing. Okay, no issues. So here is the country code, and we can coordinate the locations for which particular country, if that Tor is like established, तो वहाँ पे कौन से सर्वर के साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। फर्दर फाइल्स यू गाइस कैन एनालाइज, बट ओके ठीक है, यहाँ तक थोड़े बहुत जो है आप कुछ कुछ डिटेल्स ट्रेस आउट वगैरह कर सकते हैं, उससे कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेंगी, नथिंग मोर देन दैट। यहाँ तक क्लियर है सबको? Further, for better analyzation of files, and this particular viewer will help you to read these files, like let me just show, let me just first download this, okay. There is a window or Win prefetch viewer. By using this, we can analyze which browser is lastly used or which kind of file is accessed. Let me just write in a paint box, by using this particular tool, what kind of informations an investigator can get.
I'm writing here. Viewer, you can see. The informations will get, that is about browser, any browser we are using. Browser created timestamp, browser लास्ट रन टाइम स्टैम्प, थोड़े डिटेल्स में मिल जाते हैं. एंड नंबर ऑफ टाइम्स browser was executed and Tor browser execution directory we can get. Directory. And we can get the file name if we have accessed, or like any file, or like kind of we have downloaded any kind of file, or like any tools or anything from the dark web and all. So we'll get to know about all those things. Okay. And where these all things are located, so in Windows we can analyze those too, but we have to go to C drive, and in Windows, or we can search for the prefetch. This one is we can open this. And in this particular scenario, now, again, as I have said, a Tor browser is based on a Firefox Mozilla. So sometimes you will directly get, किसी के सिस्टम में हो सकता है कि डायरेक्टली आपको Tor ब्राउजर का .exe का दिखे, and that extension will be on .pf. .pf extension आपको दिखेगा. एंड यहाँ पे Chrome दिख रहा है आपको, बिकॉज आई हैव जस्ट रन Chrome 2, Chrome ब्राउजर पे हमने रन किया था. लेट्स जस्ट गो डाउन, और यहाँ पे कुछ दिख रहा है क्या? हाँ, यहाँ पे दिख रहा है मुझे firefox.exe. एंड लेट्स जस्ट सी, टाइम हम देख लेते हैं इसका. इस टाइम स्टैम्प के हिसाब से 6/5/2024 9:23 में दिख रहा है. अभी मेरा 9:58 हो रहा है. दैट मीन्स कि उसके पहले मैंने मोजिला फायरफॉक्स वगैरह यूज नहीं किया था. सो दैट इज अ टाइम स्टैम्प कि मुझे दिख रहा है कि ये firefox.exe फाइल जो मुझे दिख रही है, दैट इज एक्चुअली फॉर टोर. वो हमारे टोर के लिए है. यहाँ पे भी एक दिख रहा है. अच्छा, वो पहले का है. सिर्फ इस टाइम पे मुझे दिख रहे हैं. उसके बाद फायरफॉक्स को मल्टीपल टाइम आई थिंक मैंने यूज भी नहीं किया होगा. फर्दर ऑल फाइल्स यू गाइस कैन जस्ट रीड फ्रॉम देयर. जितने भी ब्राउजर्स के जो भी आपको दिखते हैं, तो इनको भी एनालाइज करा जा सकता है. बट इफ विल ट्राई टू सी द प्रॉपर्टीज एंड ऑल ना, लेट्स जस्ट ओपन एनी, कहाँ गया दिस वन, राइट. लेट्स जस्ट ओपन दिस, ट्राई टू ओपन दिस विथ नोटपैड. We can't get anything, right? And not about the other details and all, like the file name and how many times that browser is executed, and nothing. Okay. So for like reading these .pf extensions files, we can use a particular tool, that is window prefetch viewer. This one. Okay. You guys can scroll down. And in this particular pictures, you guys can see, यहाँ पे ऐसा कुछ दिख रहा है. देखो, firefox.exe and the timestamp, modified time, and the file size, and process exe, and the other details too. So files वगैरह की कुछ size वगैरह भी details मिल जाते हैं. And once we are clicking on any particular file, we are getting some other details too inside there related to that particular thing. Okay, let's just use this. So just scroll down.
and from here we guys can download this. Okay, so for 32-bit, for like 64-bit, we can easily download. So I have already downloaded. Let's just open that. Where is that window? This one. Okay, and there is a zip file. We have to extract this. I have already extracted. This one is a file. Let's just open this. It will automatically detect all the browser status and all. And the benefit of using this particular viewer is that na, if that person, or we have lastly discussed about the second scenario na, कि what if that particular Tor browser is uninstalled in a system. अगर Tor browser हमारे उस system पे uninstalled हो गया है, so well in that case also this software is available to retrieve those activities. So we can retrieve the activities. So let's just scroll down, or let's just see. Okay, yeah. So यहाँ पे हमें एक firefox.exe दिख रही है, and that icon is actually Tor, not the Firefox icon, right? And this is that PF file, and the timestamp is that, and some file size are there also. So now just click there, and we can at first go to the property section. Otherwise, in a downward section, we have some other extensions of files too, like MFT and all in all. Let's just click on property. So once I have clicked on property, let's just see. Created, okay, modified time and all. Some like little bit details are there. Last run time there, run counters. Okay, so 24 times we have explored, and process path, right? And nothing else. So try exploring some other websites and try some down or by downloading some of the files and all from the dark web, and just check all these details. अभी फिलहाल के मैंने कुछ भी उस पर नहीं कर रखा एक्टिविटी. Let's just cut this and let's see whether we are getting any information downside or not. Let's just open this. What is this? Okay, index and all we are getting. That's it. Okay. So if there will be any kinds of file, na, or like in which particular folders we have downloaded, or like we have deleted or we have removed, so every details we can get by using this. I guess am I clear till now? यहाँ तक सबको समझ में आया यूज करना है all? Okay. Any doubts till now? बाकी लोगों को समझ में आ रहा है क्या? सुविधि क्लियर है? Okay. Okay, now let's just come back there. Okay, हमने टॉपिक्स डिलीट कर दिया. Okay, so by analyzing all these things now, there is one question I have asked in a normal group too, जो CHFI classes में हुए थे. So what we have to prefer, like either VPN or Tor or like proxy, and in which situation Tor is good or like proxy is good or VPN is good. Is there is anybody who are having answer? More specific, if I'll ask, like most of the persons are like using the Tor browsers, or they're exploring the dark web for some illegal things, or like cardings वगैरह करने के लिए यूज करते हैं. So can we like use Tor browser for carding and all? जितने लोगों को थोड़ा आइडिया है उसमें.
Yes or no? How many of you are not aware about the carding? आप इसके आंसर लिख के रखो, मैं 2 मिनट में एक बार पानी पी के आता हूँ, ठीक है? Okay, let's just further proceed. VPN. So this is the answer for using the carding. Sorry, for carding we can use VPN. Is that the answer? कितने लोगों का आइडिया नहीं है? What is carding? SOC 5. Why? SOC 5 is a good answer. Right answer, sorry. Why we can't use Tor, or like people are not preferring VPN? Why they are preferring RDP? RDP is another thing वैसे तो, लेकिन if we'll discuss about the proxy chain and more specifically in a proxy, why only we are preferring the SOC 5? Why not like other proxies, HTTPS or like HTTP? SOC 4 को भी थोड़ा कम ही preference मिलता है. तो खुद सोचो, बताना सोच के. Okay, let's just erase this. Okay, what are the challenges inside the investigation? अभी इसमें थोड़ा सा challenges को देखते हैं. टाइम ऑलरेडी हो गया, 1 घंटा बहुत कम मिलता है. I'm writing here challenges in Tor investigations. I'm writing, right? So first thing is that Tor के investigations में काफी high level की anonymity maintain करी जाती है. So वैसे ही थोड़ा सा difficult हो जाता है. Other thing is that multiple layer of encryptions हमने जैसा देख रखा, in a middle relay multiple encryption encrypting service servers are there. उसके वजह से भी हमारे पास में थोड़े कम चांसेस होते हैं कि हम ट्रेस आउट कर सकें. नाउ लेट्स जस्ट फोकस ऑन अ एंट्री रिले एंड एग्जिट रिले. ओके, किसी के दिमाग में कोई ऐसा कोई assumptions है हाउ वी कैन प्रोसीड टू इन्वेस्टिगेट from the exit relay or to entry relay? If with the help of ISP, because thereafter as an personal persons there is no chances to further investigate. Now it's a time to get help from the cyber cell or like ISP and the telephone companies and all. So I'm giving a scenario. If we have the support of a like a government or like telephone companies or ISP, then how we will proceed? If we want to trace out some details from the entry relay and if we want to trace out some details from the exit relay. इसके बाद एक पॉइंट और हमारा बचता है by analyzing the memory dump. अगर आपका in any crime scene we are getting any systems open, तो उस सिनेरियो पे लाइव रैम को एनालाइज करके भी हम टोर के कुछ एक्टिविटीज को ट्रेस आउट वगैरह कर सकते हैं. फॉर दैट आई विल गिव यू सम पर्टिकुलर टूल्स इन ऑल सिनेरियो. इफ दैट इज बेस्ट फॉर ऑल इलीगल एक्टिविटीज देन आप कार्डिंग वालों से पूछना, वो टोर को कभी इस्तेमाल नहीं करते हैं. इवन आई विल नॉट रिकमेंड टू यूज टोर, उसमें ट्रेस आउट हो जाएंगे आप. बट आखिर बाकी चीजें सही है. बट इसमें we will get complete details about the entry IP and exit IP from the ISP. Yes. So what happened? Challenges are what?
अगर आपको एग्जिट रिले की आईएसपी मिलती है तो आपको क्या लगता है? एग्जिट आईपी इज अ काइंड ऑफ प्रॉक्सी। एग्जिट आईपी इज अ काइंड ऑफ प्रॉक्सी, और उस सिनेरियो पे लेट सपोज देयर आर मल्टीपल आईएसपीज, सॉरी मल्टीपल सर्वर, एंड आपको इस सर्वर की डिटेल्स मिली है। सो ये सर्वर के पास आईपी इधर से आया था, ये सर्वर के पास आईपी इधर से आया था। So after getting the details, how we will proceed? यही क्वेश्चन साइबर पुलिस के भी आते हैं कि उनके पास तो सारे सिस्टम्स हैं, सारे एक्सेस हैं। Okay, for tools. So see, for better analysis of like Tor browser or like anything, na, you need to know like how we can analyze the RAM or how we can analyze the स्पेसिफिकली अगर आप विंडोज की बात करें तो आपको विंडोज फोरेंसिक्स पूरा आना चाहिए। इवन लोग से आईपीस निकालनी आपको पूरी आनी चाहिए, और आपको हाँ ठीक है, मतलब जितने टूल्स वगैरह होते हैं वी गाइस कैन यूज दैट। एफटीके इमेजर से भी हम उसका ये कर सकते हैं, और बाकी अदर टूल्स भी हैं। So memory acquisitions, let's just focus on the memory acquisitions. Tor ब्राउजर की फोरेंसिक्स में मेमोरी एक्विजिशंस का भी इंपॉर्टेंट रोल रहता है। अभी 3 सिनारियो पे हमारे डिपेंड करते हैं, like when Tor browser is opened or like installed है, we have discussed on a Tor browser closed and we have discussed on a Tor browser uninstalled. Okay, इन तीनों ही सिनारियो पे there is an another situations when that system is opened. वो सिस्टम हमारा ओपन है जहां से एक्टिविटीज वगैरह हमारी हो रही थी। सो वहां से फिर जो प्रोसीजर जाता है वो सीधा सीधी रैम इन्वेस्टिगेशंस पे जाता है, एंड फॉर दैट वी हैव सेवरल मेथड्स एंड टेक्नोलॉजीज टू एनालाइज। उसके लिए आप बहुत सारे टूल्स को अप्लाई कर सकते हैं, जिनमें कि आपका एफटीके इमेजर इस्तेमाल करो, या फिर आप वोलेटिलिटी इस्तेमाल कर रहे हो, या फिर तो आप आपका, मैं इधर कुछ लिख भी रहा हूँ, ठीक है, यू कैन यूज वर्कशॉप, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइव रैम कैप्चर, रैम कैप्चर्स के लिए आप यूज कर सकते हैं। यू गाइस कैन सर्च इन गूगल एंड यू गाइस कैन डाउनलोड दैट। एफटीके इमेजेस का हमने इस्तेमाल किया होगा, लेकिन रैम एनालिसिस के लिए और मेमोरी एनालिसिस के लिए हमने वो नहीं किया था, या किसी ने किया होगा इसको, मतलब रैम के एनालिसिस में कैसे हेल्प वगैरह करेगा उसके लिए। ओके, so investigators need to acquire a memory dump of the suspect machine to begin the forensic examinations, and by analyzing the RAM, आपको अभी तो फिलहाल हम रैम एनालिसिस वाले किसी भी टूल्स को रन करके नहीं देख सकते, लेकिन किसी एक और पार्ट में हम कोशिश करेंगे उसमें कि स्प्लंक से थोड़े लोग देख लें और दूसरा किसी एक टूल्स को हम देख लें। हमें यहाँ तक ही रखना पड़ेगा, एंड टाइमिंग भी हमारा 15 मिनट्स ओवर जा रहा है। सो वंस आई विल शेयर सम पिक्चर्स, लेकिन कई सारे लोग डिफरेंट ग्रुप से ज्वाइन किए होंगे, सो टेलीग्राम पे कुछ पिक्चर्स मैं शो कर दूंगा। बाय एनालाइजिंग और बाय सीइंग दोज पिक्चर्स यू गाइस विल गेट टू नो कि रैम से हमें किस तरीके की इंफॉर्मेशन मिलती है। तो वहां पे भी कुछ फाइल्स, कुछ एक्टिविटीज और बाकी डिटेल्स वगैरह मिल जाती हैं। ऑल्दो लाइक फाइल्स की डिटेल्स और द अदर लिंक्स एंड ऑल, वो आपको प्रीफेच व्यूअर से भी मिल जाएंगे अगर वो अनइंस्टॉल है तब भी। तो जितने भी फोरेंसिक्स के मेथडोलॉजीज आते हैं वो सब आपको अप्लाई करना पड़ेगा, देन ओनली वी आर एबल टू एनालाइज दिस थिंग्स। इसके बाद बल्क एक्सट्रैक्टर भी है, उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बल्क एक्सट्रैक्टर, राइट, यू कैन यूज दिस टू। तो इससे भी आपको कुछ हेल्प मिल जाएगा उसको एनालाइज करने के लिए। अभी ये सारे टूल्स किस चीज के लिए हेल्प में आते हैं ना, ये इस टूल से, एंड इफ यू आर एनालाइजिंग द रैम, देन व्हाट काइंड ऑफ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन विल गेट। जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस में जो डार्क वेब में या बाकी ऐसे कुछ केसेस होते हैं, उस कुछ केसेस में रैम से भी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ऑल्दो दैट सिस्टम इज क्लोज्ड, वो सिस्टम क्लोज्ड है, तब भी रैम को वापस ओपन करने के बाद रैम को एनालाइज करने पे कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। दैट्स वाई इन्वेस्टिगेशंस में थोड़ा केयरफुली चलना पड़ता है हमें। अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे लगती है, कुछ केसेस में साइबर सेल ने भी वर्किंग वगैरह कर रखा है, आई हैव टू एक्सप्लेन एंड डिस्क्लोज सम ऑफ द केस स्टडीज टू, जहां से आपको समझ में आएगा थोड़ा। इससे आपको यूआरएल्स की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि कौन सी वेबसाइट्स वगैरह विजिट वगैरह कर रखे थे, और वेबसाइट्स आपने क्या विजिट कर रखा था, ठीक है।
and sometimes not the passwords and the other details, but sometimes we are able to get the email ID in all. अब इट्स डिपेंड कि वहां पे क्या क्रीडेंशियल्स वगैरह करी जा रही हैं एंड ऑल, उस पर थोड़ा सा डिपेंड करता है. अदरवाइज लॉग फाइल को एनालाइज हम करेंगे तो वहां पे कोई इन्फॉर्मेशन ज्यादा नहीं मिलेगा. वी कैन गेट सम यूआरएल्स टू, but not the personal details. If we have entered any email ID or like for payment methods we are putting anything ना, तो वहां से फिर एक और ट्रेसिंग होता है. If somebody is paid by even crypto ना, तो क्रिप्टो की भी ट्रेसिंग होती है. एंड क्रिप्टो में ब्लॉकचेन्स वगैरह आपको थोड़ा आना पड़ेगा, वो उसके लिए डिफरेंट टूल्स वगैरह आते हैं. वो टूल्स विद द हेल्प ऑफ इन्वेस्टिगेशंस डिपार्टमेंट और लाइक लॉ इन्फोर्समेंट उसको यूज करके वहां से भी इंफॉर्मेशन मिल जाती है. लेकिन काफी कॉम्प्लिकेटेड केस होते हैं, तो जब तक कोई हाई केस प्रोफाइल केसेस नहीं है या फिर बहुत लार्ज अमाउंट पे मनी नहीं गया हो, तब तक इसमें ज्यादा वर्किंग नहीं होता है. सो जनरली पुलिस आर लाइक जस्ट लिविंग दिस केसेस. अगर डार्क वेब से अगर कोई ऐसा कुछ केसेस आया तो ये सारे सिनेरियो होते हैं. बट व्हाट आर द इन्फॉर्मेशन हमें जो मिलता है, इन्फॉर्मेशन काफी क्रूशियल मिलते हैं इफ यू आर एनालाइजिंग द रैम. एंड उससे को जाके पिक्चर्स भेजूंगा जहाँ पे कि वो दिखाया गया है उसमें कि यूआरएल कैसे दिखते हैं. समटाइम्स वी आर गेटिंग द ईमेल आईडी. सो व्हाइल पुटिंग एनी क्रेडेंशियल्स इन अ डार्क वेब, अब जहाँ पे एंट्री पे डाल रहे हैं एड्रेसेस वगैरह, कुछ लोग प्रोडक्ट परचेजिंग करने के लिए डार्क वेब में एड्रेसेस वगैरह तो रियली डालते हैं, मतलब अपने घर का नहीं डालते हैं, लेकिन कहीं और का तो अब डिटेल्स रियली डालते हैं. उनमें से कुछ डिटेल्स के थ्रू या फिर कुछ और आईडीज के थ्रू, तो पॉसिबिलिटीज बहुत सारे होते हैं, उसके थ्रू घुसा जा सकता है. टुडे वी हैव टू ओनली डिस्कस अबाउट द टोर ब्राउजर एंड टोर ब्राउजर्स में किस तरीके से काम होते हैं, उसको मैंने थोड़ा बताया. वी हैव नॉट एक्सप्लोर्ड अबाउट इन डिटेल वे ऑफ एंट्री रिले एंड एग्जिट रिले. सिर्फ मैंने एक क्वेश्चन मार्क करके छोड़ दिया कि वहां से आप किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं. इस पे एक 30 मिनट्स के रिकॉर्डेड वीडियोस है जो मैंने कहीं पे बता रखा था फॉर अंडरस्टैंडिंग हाउ वी कैन प्रोसीड विद द एंट्री रिले एंड हाउ वी कैन प्रोसीड विद द एग्जिट रिले. वो रिफर कर दूंगा या तो टेलीग्राम ग्रुप पे आपको शेयर कर दे जाएंगे, उसको देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा थोड़ा. तो ये वाला सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा. रैम का हम नहीं देखेंगे, या अगर टाइम मिला तो वो देखेंगे. अदरवाइज आई विल ऐड ऑन द ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो के लिए कौन से टूल्स वगैरह आते हैं. लाइव क्लासेस में इतना रियल टाइम पे दिखाना चीजों को उतना मुश्किल होता है जब तक कि हमें कोई केसेस नहीं मिल जाते. एक केसेस को सोल्व करने में महीना 2 महीना लगता है. एक एक कड़ी आई विल प्रीफर कि आप एक बुक भी पढ़े, कनेक्टिंग डॉट्स भी पढ़े, तो जाके मिलता है. मैंने ओवरऑल समरी करके आपको बताया, इतना ईजी नहीं है डार्क वेब से केसेस को सोल्व करना, ऑल्दो हमारे पास में चांसेस बनते हैं कि वी कैन ट्रेस आउट. आई गेस आई एम क्लियर विथ ऑल दिस पॉइंट. तो जिनका यहाँ पे डाउट होगा वो उसको रिफर कर लेना, उसको रिफरिंग कर दूंगा मैं, ये वाला और ये वाला. उसमें भी एक्सप्लेनेशन होगा, ऐसे कुछ प्रैक्टिकल्स करके आप उसमें नहीं निकाल सकते. ठीक है. हाँ, वॉलेटिलिटी भी यूज कर सकते हैं. सो मेनी टूल्स आर देयर. पवन कल्याण को okay guys, I am getting some call, so I'll have to wind up this session. तो और किसी कुछ डाउट होंगे सो सॉरी. टेल ओएस और बाकी चीज़ों के लिए हम थोड़ा नहीं डिस्कस कर पाएंगे. टेल ओएस तो आपको मिल जाएगा, गूगल वगैरह यूट्यूब वगैरह करोगे, जो यूट्यूब वगैरह से एक्सेस आ जाएंगे. हाउ टू डिक्रिप्ट द रैंसमवेयर फाइल, प्लीज गिव मी सम सॉल्यूशन. रैंसमवेयर डिक्रिप्ट करने के लिए इट्स डिपेंड कि आपके पास में कौन से फाइल के एक्सटेंशन है. तो इट्स बेस्ड ऑन द, अगर आपके पुराने थोड़े एक्सटेंशन है तो उसके लिए अवेलेबल होंगे डिक्रिप्टर्स उसके, और अगर न्यू है तो डिक्रिप्ट करना बहुत मुश्किल से. मुझे अभी याद है 2 साल पहले या 2.5 साल पहले एक आया था केसेस, जिस टाइम पे मेरे ही डिस्ट्रिक्ट में मोर देन 8 to 10 केसेस आए थे जो गेमिंग करते हैं उन लोगों को. और उस टाइम पे जो एक्सटेंशन था, अभी मैं भूल गया, काफी पुराना केस था वो, उसमें 7 दिन लगे थे. इवन मेरे से भी नहीं हुआ था. आई हैव फॉरवर्डेड टू द हायर अथॉरिटीज. उस टाइम पे क्विकली वालों के साथ में कुछ कनेक्शन थे, उनसे भी नहीं हुआ. उसके बाद फिर गवर्नमेंट के पास में गया, साइबर सेल वालों के पास भी गया था, फिर 1 महीना 2 महीना लगा था, फिर जाके डिक्रिप्टर बन पाई थी. तो उन्होंने जो उनके एक्सपर्ट्स थे या वहां पे जो लोग एक्सपर्ट्स, उन्होंने खुद कोड वगैरह कर रखा था. सो इट्स डिपेंड कि आपको डिक्रिप्टर्स कैसे मिलता है वो. सर कैन आई कॉल यू आफ्टर द कंप्लीट क्लास? इट्स 10:51. तो आप मुझे एक काम करना, 11 बजे या 11:15 पे कॉल कर लेना उधर. ओके गाइस, बाय बाय. आई गेस आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, 50% ही समझ में आया होगा जहां तक मुझे लग रहा है.